kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 3, which is Nazism and the rise of Hitler, and today's session will be session number 3. So in this session we are going to start with political radicalism and economic crisis. तो जो economic crisis हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में. The political atmosphere in Berlin was charged with demands for Soviet style governance. तो जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था बर्लिन में वो चार्ज्ड अप था. उसके लिए डिमांड हो रही थी कि सोवियत स्टाइल जो गवर्नेंस है वो आए बर्लिन में, एंड उसके लिए एवरीबडी वाज डिमांडिंग फॉर दैट. Those opposed to this, such as the socialists, Democrats and Catholics, met in Weimar to give shape to the democratic republic. तो जो लोग इसके अपोजिशन में थे, the people who were opposing it, they were the socialists, Democrats and Catholics. तो वो सारे जो लोग थे जो इसको अपोज कर रहे थे वो they met in Weimar, वो वेमार में मिले, and to give the shape to the democratic republic जो वो चाहते थे, तो उसके लिए they all met in Weimar. The Weimar Republic crushed the uprising with the help of a war veterans organization called Free Corps. The anguished Spartists later founded the Communist Party of Germany. तो जो वीमार रिपब्लिक था उन्होंने जो अपराइजिंग था उसको क्रश किया विद द हेल्प ऑफ जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था फ्री कॉप्स. उसके साथ मिलके उन्होंने उसको अपराइजिंग को क्रश किया. एंड ऑल्सो जो एंग्लिश स्पार्टिस्ट थे उन्होंने लेटर उन्होंने फाउंड की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी है. दे लेटर फाउंड दैट पार्टी. Communists and socialists henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. तो जो कम्युनिस्ट थे एंड जो सोशलिस्ट थे आगे जाके वो एक दूसरे के एनिमी बन गए. एंड उनके जो बीच में द डिसएग्रीमेंट दैट दे हैव इन बिटवीन देम वो उसको रिकनसाइल नहीं कर पाए. एंड देन that's how could not make common cause against Hitler. Both revolutionaries and militant nationalists craved for a radical solution. तो जो भी revolutionary थे and जो militant nationalists थे वो they wanted to have a radical solution. They were craving for that radical solution. Political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923. तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई 1923 की उसने केवल जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन है उसको बढ़ाया, उसको इट वाज हाइटेंड बाय इट. जर्मनी हैड फॉट द वार लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर reparation in gold. This depleted gold reserve at a time resources were scarce. तो जर्मनी जो है जो उसने वॉर फाइट करी, द वॉर दैट दे फॉट इन दिस वॉर दे फॉट लार्जली ऑन लोन्स. तो जो लोन इन्होंने लिया था देन दे हैड टू पे फॉर दैट, एंड जो लोन उनको पे करना पड़ा दैट दे हैड टू पे इन गोल्ड. तो गोल्ड में वो लोग पे कर रहे थे एंड दैट्स हाउ जो गोल्ड रिजर्व था उनका वो बहुत डिप्लीट हो गया. एंड वो उस टाइम डिप्लीट हुआ व्हेन रिसोर्सेज वैसे ही कम थे. सो जो उनका गोल्ड रिसोर्स था ऑलरेडी वो इतना डिप्लीट हो गया. एंड जर्मनी जो उन्होंने वॉर ये पूरी लड़ी थी एंड happened because जो war थी that was largely they fought on loans. In 1923 Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area Ruhr to claim their coal. तो 1923 में because Germany के पास ज़्यादा कुछ नहीं था and they were paying with the gold and वो जो उस टाइम में they were paying when जो उनके पास ऑलरेडी स्कार्स में था. सो रिसोर्सेज उनके पास वैसे ही नहीं थे एंड दे हैड टू पे बैक द लोन. सो इन 1923 जर्मनी ने रिफ्यूज़ कर दिया पे करने के लिए. एंड जो फ्रेंच लोग हैं देन दे ऑक्यूपाइड जो लीडिंग वहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया था जिसका नाम रूर था उसको उन्होंने क्लेम किया. जो वहाँ का कोल था उसको उन्होंने क्लेम किया बिकॉज जर्मनी जो थी दे रिफ्यूज टू पे द लोन बैक. उन्होंने वो पे करना मना कर दिया. Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly. With too much printed money in circulation, the value of the German mark fell. Now, when Germany they refused to pay, and that's how जो उनका जो main leading industrial area था that
that was occupied by the French and they claimed the coal there. So Germany जो है they retaliated, उन्होंने retaliate किया with passive resistance, उन्होंने retaliate किया and what they did, they printed the paper currency, उन्होंने recklessly जो paper currency है उसको उन्होंने print किया and that's how it all started. With too much money उन्होंने जो print कर लिया उससे जो money थी वो circulation में बहुत ज़्यादा आ गई and उसके वजह से जो value of German mark है वो बहुत फेल हो गया एंड वी विल सी आगे कि विल डिस्कस कि उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या हुआ. As the value of the mark collapsed, prices of goods soared. The image of Germans carrying cartload of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. This crisis came to be known as hyperinflation, a situation when prices rise phenomenally high. तो एज द जो मार्क की वैल्यू है, जर्मन मार्क की वैल्यू है वो कोलैप्स हुई तो जो प्राइसेस हैं चीज़ों के वो बहुत ही बढ़ गए. सो दे जस्ट सोल्ड, बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए एंड उसे क्या हो कि जो इफ़ यू गो एंड इफ़ यू सर्च द इमेजेस यू विल सी कि कार्ट लोड ऑफ मनी जो है वो जर्मन्स लेके जा रहे हैं जस्ट टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड. केवल एक ब्रेड बाय करने के लिए उनको कार्ट लोड ऑफ मनी जो है वो लेके जानी पड़ती थी बिकॉज मनी हैज़ लॉट्स ऑफ वैल्यू. मनी की जो वैल्यू थी, जो पैसे की करेंसी की वैल्यू थी वो गिर गई थी एंड दैट्स हाउ केवल एक लोफ ऑफ ब्रेड फॉर एग्जांपल उनको बाय करने के लिए दे हैड टू टेक अ कार्ट लोड ऑफ मनी. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो हुआ, जो मार्क की वैल्यू फेल हुई इन द इमेजेस कि लोग एक ब्रेड को बाय करने के लिए, एक लोफ ऑफ ब्रेड को बाय करने के लिए दे नीड अ कार्ट लोड ऑफ मनी. ये सारा जो है वाइडली जो है सब जगह वो पब्लिसाइज हुआ एंड ऐसे वर्ल्ड वाइड जो सिंपैथी है लोगों की वो हुई जर्मन लोगों के लिए. एंड द क्राइसिस जो है ये उस क्राइसिस को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. इसको हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है एंड हाइपर इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहाँ पे जो प्राइसेस हैं दे राइज फिनोमिनली हाई. मतलब बहुत ही ज़्यादा जब प्राइसेस चीज़ों के बढ़ जाते हैं एंड जो करेंसी है वहाँ की पर्टिकुलर जो भी कंट्री है वो फेल हो जाएगी. द वैल्यू ऑफ द करेंसी विल फेल एंड दैट्स हाउ जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी एंड दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन. Eventually, the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Dawes Plan, which revoked the terms of repatriation to ease the financial burden on German. तो फाइनली इवेंचुअली जाके जो अमेरिकन लोग थे उन्होंने, अमेरिका ने इंटरवीन किया और उन्होंने जर्मनी को बेल आउट किया इस क्राइसिस से एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस करा जो डॉस प्लान. इससे उन्होंने जर्मनी को बेल आउट करा एंड जिसकी वजह से जो जर्मनी है उसमें जो उसका जो ये बर्डन था सारा वो किसी तरह कम हुआ बिकॉज US intervened and they bailed out Germany out of all this. Now we'll discuss about the years of depression जो हुआ. The years between 1924 and 1928 saw some stability, yet this was built on sand. German investments and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from the US. Now in between जो time है 1924 से 1928 का, वहाँ पे there was some stability because the US intervened and they helped Germany, they bailed out Germany. So उस time में things were a little bit stable and बट जो भी ये जो सिचुएशन था इस टाइम पीरियड में भी दैट वाज जस्ट बिल्ट ऑन सैंड बिकॉज इट वाज गोइंग टू गो डाउन. जर्मन जो इन्वेस्टमेंट थे एंड इंडस्ट्रियल जो रिकवरी थी वो टोटली डिपेंडेंट थी. जो US ने उनको शॉर्ट टर्म लोन्स दिए थे मोस्टली वो सारी जो रिकवरी थी उनकी दैट वाज बेस्ड ऑन ऑल दैट बिकॉज वहाँ पे दे हैड हाइपर इन्फ्लेशन. अगर द अमेरिकन्स इफ दे डिडंट इंटरवीन, उन्होंने इंटरवीन नहीं किया होता तो इतना भी नहीं होता. सो जो भी जो स्टेबिलिटी आई बिटवीन 1924 to 1928 दैट वाज लार्जली बेस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स जो US ने प्रोवाइड किए थे फॉर द जर्मनी.
This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. तो ये जो सपोर्ट था अमेरिका का, जो यूएस हेल्प जर्मन्स, वो जो सपोर्ट था दैट वाज विड्रॉन, वो विड्रॉ कर लिया गया इन 1929 जब जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो क्रैश हुआ। तो 1929 में यूएस ने जो सपोर्ट दिया था, दे विड्रॉ दैट सपोर्ट। On one single day, 24 October, 13 million shares were sold. This was the start of the Great Economic Depression. Over the next 3 years, between 1929 and 1932, the national income of the USA fell by half. So on one single day, if we talk about जो Wall Street Exchange जो crash हुआ 1929 में, so it was one single day, 24th October जो था वो दिन 13 million जो shares थे वो sold हुए, and ये जो था this was all the starting of Great Economic Depression हुआ, उसकी ये शुरुआत थी, and that started with that date जो 24th October था, and it started with the selling of all those 13 million shares. So over the next 3 years जो हुआ between 1929 and 1932, जो national income है USA की that fell, वो fell हुई by half. So this is how all everything changed from the 24th October with the selling of all those shares. The German economy was the worst hit by the economic crisis. By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929 level. तो जो जर्मन इकोनॉमी थी वो बहुत बुरी तरीके से हिट हुई, बिकॉज वो ऑलरेडी दे वर इन प्रॉब्लम, और उनको यूएस ने बेल आउट किया था, एंड उनकी जो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी थी वो ज़्यादा नहीं थी. इट वाज ऑल बेस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स दैट वर प्रोवाइडेड बाय द यूएस, एंड व्हेन दे took that support out, then there was nothing for the Germany to fall back on, and that is why जो Germany था वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ, सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट हुआ इस इकोनॉमिक क्राइसिस से. एंड बाय 1932 जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था जर्मनी का वो रिड्यूस होकर केवल 40% ऑफ 1929 का लेवल का रह गया वो. The economic crisis created deep anxieties and fears in people. The middle classes, especially salaried employees and pensioners, saw their savings diminish when the currency lost its value. So the economic crisis था वो उसने बहुत जो deep anxiety है and fear है वो लोगों में पैदा किया, because there was no certainty, वहाँ पे कुछ नहीं थी. and जो middle class है, especially जो salaried लोग थे and also जो pensioners थे, उन्होंने देखा कि उनका जो सेविंग्स थी वो डिमिनिश हो गई, बिकॉज जो वैल्यू है मनी की वो इतनी फेल हो गई थी, जो मार्क की वैल्यू थी वो इतनी फेल हो गई थी, बिकॉज करेंसी जो उसने अपनी वैल्यू करेंसी की इतनी गिर गई थी. तो जो सैलरीड लोग थे एंड ऑल्सो पेंशनर्स थे, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हुई, बिकॉज जो वहाँ की करेंसी थी उसने अपनी वैल्यू बहुत लूज़ की थी. The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agricultural prices, and women unable to fill their children's stomachs were filled with a sense of despair. तो जो large mass of जो peasantry थी वो affected हुए, क्योंकि जो agriculture prices हैं उसमें बहुत ज़्यादा sharp fall हुआ, उसके prices बहुत गिर गए. So that is why वो जो लोग थे peasantry लोग, they got affected, and जो women थी they were not able to give their kids proper meal, वो नहीं दे पा रहे थे, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में जो despair था that was very much there कि वो अपने बच्चों को they cannot even feed their kids, इतना ज़्यादा वहाँ पे problem थी. So in this session we have discussed about जो Great Depression था वहाँ पे किस तरीके से जर्मन जो थे they were already in big crisis, because जो उन्होंने war fight की थी that was on loan, and they were giving it back, जो gold है उसमें दे रहे थे, and उसके बाद because they were in crisis तो इसलिए US came and they helped them and they bailed him out. But US also had its जो वहाँ की problem थी 1929 की, and that's why उन्होंने जो अपना support है वो वापस ले लिया, and that's why जो
जर्मनी है उसकी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई बिकॉज ऑफ द करेंसी लॉट्स इट्स वैल्यू देयर. सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.